السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ سب ساتھیوں کو اسلام بہت بہت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا جی، وبرکاتہ۔ کیسے بھائی آپ ذرا گائیڈ کیجیے گا ہمیں کس کس کو کرنا ہے، اور جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو اس میں گزارش صرف اتنا ہے کہ جس ساتھی کو، نئے ساتھیوں میں سے جس کو آتا ہو اس کو ذرا پہلے اور دوسرے کو بعد میں۔ تو ہمارے ساتھ جی کیسر بھائی ہیں، عبدالرؤف بھائی ہیں، داؤد بھائی ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں، اور صدیق صاحب۔ صدیق بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے جی۔ اللہ ملک صاحب اور باقی خواتین ہیں، اور شریف ہمارے چشتی لیے صاحب جی ماشاء اللہ آ رہے ہیں۔ جی، اور میں بھی ہوں۔ آپ بھی جی، آپ اپنا نام بھی بتائیے گا۔ جی مشتاق مغل صاحب ہیں۔ مشتاق مغل صاحب تو ہمارے پہلے نام لیا میں نے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا، مجھے یہ بتائیے، میں تھوڑا سا اس کی ریویژن بھی کرواؤں گا۔ شاتتا کے معنی مشتاق مغل بھائی کیا ہے؟ پہلے وہ تاول اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی مشتاق بھائی بتائیے گا کیا مطلب ہے شاتا؟ تو حد سے، جو ایسی بات جو حد سے گزر گئی ہو، یا ہاں جی ٹھیک ہے، حد سے گزرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ہمارا یہاں محاورہ تھا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس کا ترجمہ بتائیں گے؟ جی میں سر کل میں داؤد نے بول رہا کلاس ہوں۔ اٹینڈ ڈاکٹر کی۔ داؤد صاحب۔ جی جی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ مضبوط کر دیا، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ الحمدللہ۔ تو افطرا کا ترجمہ ضیاء اللہ ملک صاحب بتائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترا۔ جی اچھا، صدیق بھائی بتائیں گے۔ صدیق بھائی مائک اپنا آن کر لیں، صدیق صاحب کا مائک آف ہے۔ اچھا، وقت کم ہوتا ہے۔ ضیاء اللہ ملک صاحب نہیں بتا رہے تو پھر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ان کو بتا دیں کیا ہے افطرا کے معنی۔ سر کل میں کلاس نہیں اٹینڈ میں کر بتا سکا دوں ذرا۔ سر جی؟ جی میں بتاتا ہوں۔ جی بتائیں افطرا۔ ہاں جی، گھر لینا، گھر لیا۔ گھڑ لینا، اپنے پاس سے بنا لیا، جی گھڑ لیا۔ اچھا کیسر بھائی، کوئی سی کا انتخاب کریں نئے ساتھیوں میں سے، تو وہ بتائیں گے فَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کا معنی کریں گے بس۔ جی سر، ہمارے ساتھ 3 نئے ساتھی ہیں، داؤد صاحب، ضیاء اللہ ملک صاحب اور صدیق صاحب۔ صدیق صاحب کا مائک آف ہے، اچھا اور ضیاء اللہ ملک صاحب آپ اور بھی پھر بتا دیں۔ جی میں بتا دیتا ہوں۔ جی اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو۔ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بتائیں گے کہ وَيُحَيِّئْ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ مہیا کرے گا۔ وہ مہیا کرے گا۔ اور مرفقا، عبدالرؤف بھائی مرفقا کے معنی بتائیے۔ جی اور کس ساتھی سے پوچھئے، کیسے بھائی ذرا جی آپ کے سامنے لسٹ ہے۔ بڑا ظالم۔ جی میں بتاتا ہوں۔ جی ایک منٹ۔
جی داؤد بھائی जी مرفقہ सर मिरफका आसानी या नरमी آسانی ٹھیک ہے आसानी جی نرمی دو چیزیں ہیں بالکل ٹھیک ہے جی اچھا یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جو ریویژن کی کیا حالت ہے آگے ہم پڑھنے لگے ہیں کل ہم نہیں پڑھ پائے تھے اگلی آیت جی ہم نے پڑھ لی تھی یا پھر آج ہم پڑھنی تھوڑی ہے سی کیسر پڑھ بھائی پائے تھے سر، ہم ذاتی تھوڑی شمال سی تک پڑھی تھی ہم نے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا بالکل دوبارہ ایک تو یہ ہے کہ آگے پڑھتا ہوں میں اور آپ پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیے گا اصحاب کہف کی قبر اپنے ذہن میں لائیں وہ شمالن جنوبن لگتی ہے کہ یا اس کا دروازہ شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے اور دوسری سائڈوں پہ کون سی جانب ہوگی دونوں سائڈوں پر مشرق و مغرب۔ مشرق اور مغرب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے جو سورج ہے اگر ڈائریکٹ ہو تو وہ گلا دیتا ہے چیز کو اور اگر سورج کی روشنی پڑتی رہے تو وہ جسم جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے وہ سوئے ہوئے تھے تو پہلے میں پڑھتا ہوں الشمس جو ہے وہ مؤنث ہے اس وجہ سے طالعت بھی آ جائے گا اور تزاورو عن آئے گا کل بڑی جلدی میں نے یہ کیا آج انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ تو تزاورو اس کا دیکھنا ہے کہ یہ زیارت کرنا ملنا یہ اس کا مادہ ہے لیکن جب جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ ذہن میں سوچ کے اس کا معنی یاد رکھنے ہیں تزاورو کے ساتھ جب آ جائے پریپوزیشن عن تو اس کے معنی بالکل الٹ جاتے ہیں تو تزاورو عن کا مطلب ہے ملنے کی بجائے الگ ہو جانا ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا جھک جانا وہ ایک طرف جھک جاتا ہے ملتا نہیں جھک جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے جی تو جی میں نے کیا بتایا کیسر بھائی ذرا بتائیے گا کہ تزاورو اور تزاورو عن کے اندر کیا جی فرق ہے تزاورو ظاہر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیارت کرنا، دیکھنا، اور تزاورو ان کا مطلب بالکل الٹ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے جدا ہونا، تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، جی جھک جاتا ہے ایک جھک جانب جاتا ٹھیک ہے ہے۔ جی آگے آ رہا ہے انکافم ذات الیمین اور ذات الشمال یہ دو لفظ آ رہے ہیں تو ذات کا مطلب ویسے تو والا ہوتا ہے زو ذات ذل یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہوتے ہیں والا۔ یمین کا مطلب ہو گیا دائیں والا تو دائیں طرف ذات الشمال اب شمال جو ہے یہ آمیں مشکل میں ڈالتا ہے ہمارے ذہن میں چونکہ جانب ہے کہ ایک ہے مشرق ایک ہے مغرب اور ایک ہے شمال اور ایک ہے جنوب ایسا ہے نا جی جی سر تو اس شمال جو ہے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو ہے وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے یمین اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو جو بایاں ہے اس کو شمال کہتے ہیں ایک تو ہماری زبان میں شمال جانب ہے شمال جی سمت ہے اور جی یہاں جی کیا شمال کے معنی ہوں گے بائیں بائیں طرف بائیں جانب بائیں بائیں جانب۔ جانب ٹھیک ہو گیا آگے لفظ آ رہا ہے فہم فی فجوۃ منہ فجوہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی جگہ فجوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کھلی جگہ۔ کھلی جگہ جی بالکل جیسے جوف کا لفظ ہوتا ہے کہ ایک کھلی جگہ اسے فجوہ منہ تو یہ لفظ ہے اور آخر میں آ رہا ہے کہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا مرشد
मुर्शिद का मतलब है रहनुमाई करने वाला। पहले भी हमने पढ़ा है रशीद, रहनुमाई हमारे वही लना मिन अमरिना राशिदा पढ़ा था, और हमारे काम में हमें रहनुमाई रहनुमाई, हिदायत। मुहैया कर पढ़ा था। जी। उसी से ही मुर्शिद इसमें फाइल बना है, जैसे मुफली, मुस्ताहजी। तो ये है इसका अरबी के अंदर जो इस्तेमाल है। अब जी पढ़ते हैं कि वातर शमसा, तो तर्जमा कल किया था, आप जा करेंगे वातर शमसा। और तू सूरज को देखता और है। तू देखेगा। तूने सूरज को देखा, ठीक है, तूने सूरज को देखा। इजा तालाअत, जब जब वो वो तुलूत होता है। तुलू जब वो होता है। तुलू होता है। तो हमने सर, होता है देखा- तो का तर्जमा क्यों किया, हमने देखा- क्यों माजी को मुजारे में तब्दील किया, बताएंगे साथी? इज़ा इज़ा की वजह से। इज़ा की वजह से। इज़ा माजी के साथ आ जाए तो मुजारे। अब इंशाअल्लाह साथी माशाअल्लाह आगे आगे चलना शुरू हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो तूने सूरज को देखा कि जब वो तुलू होता है तो क्या होता है, त आपको पता है मुजारे के अंदर त अगर शुरू में आ जाए तो वो मुअन्नस के लिए भी आता है, गायब के लिए और तू के लिए भी आता है। तज़ावरु अन काफिहिम, वो एक जानब अलग हो जाता है। तज़ावरु मैंने बता मिलना, और तज़ावरु अन हमने इसका किया वो झुक जाता है, झुक जाता करें इस वजह से कि तर्जमा इसका वो एक जानब अलग हो जाता है भी करेंगे तो मेरा ख्याल है ठीक है। सर इसमें हट जाना भी है। झुक जाना ठीक है सर। पहले फिर अब इसको ज्यादा करेंगे तो फिर वो अब मुश्किल इधर है। उधर हो जाएंगे सही जी। है। तो अलग हो जाता है, झुक जाता है, या अब तजावर बताया कि वो मिलना होता है, तजावर अन उसका उलट है मिलने का। अब वो ज़हन में रख ले। तो झुक जाता है अन काफिहिम, तर्जमा उनकी कार से। उन नौजवानों के उसकी गार से गार किस से तरफ झुक जाता है, ज़ातल यमीनी, दाएं दाएं तरफ। तरफ से। दाएं जानिब, दाएं तरफ जी, दाएं तरफ झुक जाता है। वैज़ा ग़रबत, अब ये ध्यान में रखिएगा कि जब ज़वाल का वक़्त लेट होता है वहां से लेकर गुरूब होने तक जो सूरज की एक्शन है उसके लिए ग़रबत आता है। हमारी जुबान में है कि इज़ा ग़रबत, जब वो गुरूब होता है, तो हमारे ज़हन में बिल्कुल उल्टा अपना इसका है कि जब वो गुरूब होने लगता है, ये हमारे ज़हन में है कि नहीं जी। जी। ग़रबत ज़वाल के बाद से लेकर सूरज का गुरूब होने तक का जो रास्ता है उसके लिए ग़रबा आता है, मगरब से निकला है जी। वइज़ा ग़रबत, जब वो गुरूब होता है। जब वो ज़वाल पजीर होता है, ये कर देते हैं वइज़ा ग़रबत। और जब वो ज़वाल पजीर होता है। जी बाकी साथियों की आवाज, जब वो ज़वाल पजीर होता है, वो सवाल पजीर होता है। जी। अब ये लफ्ज आ रहा है तकरीदू, तकरीदू कर्ज से निकला है। कर्ज, कर्ज क्या करता है, कहते हैं कि अल कर्जु मिकराजल मुहब्बा, कि कर्ज मोहब्बत की कैंची है, मोहब्बत के लिए कैंची है, कर देती है उसको। तो यहाँ है हमने किया, क्योंकि कैंची कुतरती है तो हम कुतरा जाता है, इसका तर्जमा किया था। वैज़ा ग़रबत, और जब वो ज़वाल पजीर होता है तो तक़रीदुहुम का मतलब क्या है, वो वो उनसे उनसे कतरा जाता वो उनसे कतरा जाता है। किधर, ज़ात शिमाली, बाएं बाएं तरफ। जानिब। बाएं जानब। वहुम, अब दरमियान वाली जगह आ गई, एक यमीन और एक शिमाल, एक दाई जानब एक बाई जानब। दरमियान वाली जगह जो बड़ी काफी खुली होगी
वहुम फी फजवतिम मिनहु, और वो उससे, उसमें खुली जगह में है। ठीक है। मिनहु काफ की तरफ आएगा। मिनहु हु की जमीर किस तरफ जा रही है? काफ की तरफ। और वो उस गार में फजवतिन खुली जगह पर है। काफ बताया ही था कि भाई खुले गार को कहते हैं, बड़े गार को। और वो वहुम फी फजवतिन मिनहु, और और वो वो गार में खुली उस गार में खुली जगह पर है। और वो उस गार में खुली जगह पर है। यहाँ तक जनाब मैं एक दफा करता हूँ, फिर मेरे बाद करेंगे डॉक्टर जुल्फकार साहब। वतर शम्सा इज़ा तलात, और तूने देखा, इज़ा तलात जब सूरज तुलू होता है, तज़ावरु अन काफिहिम, वो उनके गार से एक तरफ झुक जाता है, ज़ातल यमीनी, दाई जानब, व इज़ा ग़रबत, और जब वो ज़वाल पजीर, अब वो सूरज ज़वाल पजीर होता है, तक़रिदुहुम ज़ात शिमाली, तो वो बाईं जानब कतरा जाता है। वहुम फी फजवति मिनहु, और वो उसमें खुली जगह में है। यहाँ तक करें जी, फिर आगे चलते हैं। वतर शम्स इज़ा तलाअत, और तू सूरज को देखेगा जब वो तलू होता है, तज़ावरु अन काफिहिम ज़ातल यमीनी, तो वो उनके गार से दाईं तरफ को झुक जाता है। वाइज़ा गरबत, और जब वो ज़वाल पजीर होता है, तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाली, तो वो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाता है। वहुम फी फजवतिन मिनहु, और वो उस गार में से खुली जगह में है। और वो उस गार में खुली जगह में है। अब ये क्या है जी? ये अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की कुदरत के। अल्लाह ताला ने उनको सुलाया और गार ऐसी जगह पे बना दिया कि उनके जिस्म खराब ना हो। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह से। की निशानियों में से। अल्लाह की निशानियों में से है। नसरुल्लाह भाई की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, आबिद भाई की नहीं सुन पा रहा हूँ। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ये की ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये झुक, एक तरफ जानब होना और बाएं तरफ झुक जाना और दरमियान में जगह होना। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद। अब एक है मुहतिद। मुहतिद का मतलब होता है हदायत देने वाला। मुहतद का मतलब होता है हदायत पाने वाला, हदायत याफ्ता। पहले पढ़ चुके हैं, मुहतदीन पढ़ा है, हदायत याफ्ता। जी। तो मन यहदिल्लाहु, बड़ा आसान तर्जुमा है जी। जिस शख्स को, जिसे अल्लाह हिदायत दे, जिसे अल्लाह हदायत दे, बिल्कुल, जिसे अल्लाह हदायत दे, फहुवल मुहतद, तो वही हिदायत याफ्ता है। वही हदायत याफ्ता है। ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत बता रहा है कि जिसे अल्लाह हदायत दे तो वही हदायत याफ्ता है। वमन युदलिल, तर्जुमा और करें, जिसे वो गुमराह कर दे, जिसे वो गुमराह और कर जिसे दे, वो अल्लाह गुमराह कर दे, फलन तजिद लहू, तर्जुमा करें जी, तो तू वो उसके लिए हरगिज़ हरगिज ना हरगिज पाएगा। तो तू उसके लिए हरगिज नहीं किस पाएगा उसके पाएगा लिए, लहू, उसके उसके लिए लिए, वलियम, वलियन, दोस्त, तर्जुमा करें, कोई वली, दोस्त, कोई दोस्त, दोस्त मुर्शिदा, मुर्शिदा, रहनुमाई हिदायत रहनुमाई देने करने वाला। करने वाला। तू उसके लिए रहनुमाई करने वाला कोई दोस्त नहीं पाएगा। बस ये ज़हन में रखिएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह हमें तू ही हदायत दे। हम अपनी ख्वाहिशात पे चलेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। फिर यह है कि हमें कोई हदायत देने वाला नहीं होगा जी। अब अपने
डॉक्टर दाऊद साहब पूरी आयत का तर्जुमा करेंगे जी। जी। वतरा शम्सा इज़ा तलाअत, और तूने देखा जब सूरज तुलू होता है, तज़ावरु अन काफ़िहिम ज़ातल यमीनी, तो वो गार वालों पर दाईं जानिब उन झुक जाता गार है, वालों से, तो वो गार वालों से दाईं जानिब झुक जाता है। हिम वैदा का तर्जुमा नहीं गरबत, ना, हिम कहेंगे तो उन तर्जुमा होगा जी। जी उन बल्कि उनकी गार है, काफिहिम, उनकी गार से जी। तो वो उनकी गार से दाईं जानिब झुक जाता है। वैदा गरबत तक़रिज़ुहुम, और जब वो ज़वाल पजीर होता है, तक़रिज़ुहुम, तो वो उनसे कतरा जाता है, ज़ातत शिमाली, बाईं जानिब, वहुम फ़ी फ़जवतिम मिन्हु, और वो उस गार में खुली जगह में हैं। दालिका मिन आयातिल्लाही, ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये हटाएं जरा सॉरी जी। मैं यहदिल्लाहु, जिसे अल्लाह हदायत देता है, वहुवल मुहतद, वो हदायत याफ्ता तो है। वही कर ले, वमई, तो वही तो हदायत वही याफ्ता है। हदायत याफ्ता है। वमई युज़लिल, और जिसे वो गुमराह करता है, फलन ताजिदा लहू वलियम मुर्शिदा, तो तू हरगिज उसके लिए कोई दोस्त ना पाएगा और ना ही कोई रहनुमाई करने वाला। जी, तो वली मुर्शिदा का तर्जुमा करेंगे रहनुमाई करने वाला दोस्त। वली मुर्शिदा, रहनुमाई रहनुमाई करने वाला दोस्त। दोस्त। तो उसके लिए रहनुमाई करने वाला दोस्त नहीं पाएगा। तो भाइयों ये है चीज, और ज़हन में ये रखिएगा कि अल्लाह जो हदायत देता है उसका कलाम मौजूद है कुरान मजीद, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ने अपना कलाम उतारा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने उसकी तशरीह करके हमें बताई है। तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कुरान और सुन्नत दोनों कुरान मजीद में से पता चलता है। आगे जी, आगे है जी, सर ये जो अल्लाह ताला ये स्टार्ट, फरमा रहा है। सर जी, सर ये शुरू में जो तरा का लफ्ज आया है, ये ता जो है ये मुजारे का है, ये लफ्ज के साथ ता है? नहीं, तरा जो है वह तरा तूने देखा, माजी का है ये। ये मतलब मुजारे का नहीं, ता मुजारे वाला नहीं है, लफ्ज के साथ ता है। हाँ जी, ठीक है, मुझे इसको देख लेने दीजिएगा, बाद में कल मैं बताऊंगा जी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, आगे जनाब। अब यह है कि लफ्ज आ रहा है कि वो लोग, तसव्वुर ये करें, अपने ज़हन में नक्शा बनाएं कि वो लोग जागे हुए हैं, लेटे हुए हैं वो, और उनकी आंखें खुली हैं वो सोए हुए हैं, आंखें खुली हुई है। तो आपको क्या लगेगा कि एक बंदा जो कि सोया हुआ हो लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हों, आप उसको देखें तो आप क्या महसूस करेंगे? मैं सदीक भाई से पूछूंगा। सदीक भाई का माइक ऑफ है सर। सदीक भाई आप माइक ऑन कीजिए और अच्छा, अभी मेरे पास असल में वक्त जो है ना वो ज़ाया हो जाता है जी। ज़ियाउल्लाह मलक साहब बताएंगे। वो ऐसे ही लगेगा सर जैसे जिंदा है। जैसे जिंदा है। क्या आप सोए हुआ आदमी को जब वो आंखें खोल के सोया हुआ हो, और एहसास क्या होगा? एक तो ये है कि भाई वो सोया हुआ है, जिंदा है, और सर वो देख भी रहा है, देख भी रहा है। पता है कि भाई ये बंदा सोया हुआ है या मुर्दा है जी। सोने को अल्लाह ताला ने मौत की है। अब मौत के अंदर एक मुर्दा अगर आंखें खोल देता है तो आपको कैसे लगेगा? खौफ महसूस होगा। खौफनाक। जी, तो वही चीज आगे चीज आ रही है जिसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो भी जवाब आपके ज़हन में आता है वो सही है। हम जो करना चाहते हैं, वतहसबुहुम, ये 2-3 बार लफ्ज आ चुका है, वतहसबुहुम। हम हासिबा पढ़ा था, क्या तूने ख्याल किया? तो वतहसबुहुम,
اور تو तहसबुहुम का ख्याल मतलब करता है, करेगा करेगा तू उन्हें करेगा ख्याल करता चलो। है या ख्याल करेगा। अगर तू जाए और उनको देखे तो तू ख्याल करेगा। अब याकिदु ऐकादन, ये नया लफ्ज है। इसका मतलब ये है जागा हुआ। याकिदु जागता वो जागता है, ऐकादन इसमें हालत है, तो ये होगा जागा हुआ। वतहसबुहुम ऐकादन, तू उन्हें तू जागा हुआ तसव्वुर उन्हें करेगा। तू उन्हें जागता हुआ ख्याल करता है या ख्याल करेगा। वतासबुहुम ऐकादन का तर्जुमा जी, और तू और उन्हें जागता हुआ और ख्याल जागता करेगा। हुआ ख्याल तू करेगा। उन्हें जागता हुआ जागने ख्याल करेगा। आगे जी लफ्ज है मरकद। मरकद किसको कहते हैं? कब्र को। खबर को। कब्र को साथी बाकी बताए ना, जिसको आता है ठीक है, दूसरे साथी सीखे। ठीक है जी। मरकद वो जगह है जहां जाके मुस्तकिल तौर पर सोना है, तो वो कब्र होती है मरकद। राकिद का मतलब होता है सोने वाला, और उसी से रुकूद, इस किस्म के अल्फाज हमने पढ़े हैं पहले पारे में। जैसे साजिद सजदा करने वाला, तो हमने पढ़ा था वर रुक का सुजूद जी, रुकू करने वाले और सजदा करने वाले वाले। पढ़ा था ना। जी 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 पढ़ा था। उसी वजन पे आया है वहुम रुकूद, हालांकि वो सोए हुए हैं। तू उन्हें जागता हुआ ख्याल करेगा। वहुम रुकूद, हालांकि वो हालांकि वो सोए हुए हैं। सोए हुए हैं। सोए हुए हैं। अब जागता हुआ कैसे ख्याल करेगा कि उनकी आंखें खुली हैं और वो हैं सोए हुए। अब ये है निशानी, मुजजा है। मुजजे के अंदर ऐसा मुमकिन है किसी आदमी ने न किया हो सिवाय उन ड्राइवरों के। अब मैं जरा लाइटर पहलू की तरफ आ रहा हूँ, जो बेचारे बजरी ला के आते हैं लेके वहां शिमाल से, और वो कहते हैं जी हम 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर सो लेते हैं और हमारा बजरी वाला ट्रक जो है वो जा रहा होता है। क्यों जी? जी ऐसा हो सकता है सर। जी, तो वो जाग भी रहे, वो सोए भी होते हैं और आंखें उनकी खुली होती है। तो जरा इसको देखें कि भाई ये अल्लाह ताला का चूंकि मुजज़ा है कि तू उन्हें जागता हुआ ख्याल करेगा। वहुम रुकूद, हालांकि वो सोए सोए हुए। हुए हैं। हालांकि वो सोए हुए की बजाय सोने सोने वाले वाले कह दें। हालांकि वो सोने वाले सोने हैं। वाले। सोने वाले हैं। अब अल्लाह ताला ने और क्या किया, अगर जिस्म एक जगह पे रहेगा तो वो मिट्टी से गल सड़ जाएगा। हमें भी रात को क्या करते हैं कि हम अपनी करवटें बदलते रहते हैं, इस वजह से कि एक जगह पे रहेंगे तो सुबह अपने पट्टे अकड़े हुए होते हैं। तो हमें तो बहरहाल एक दिन, और वो था 309 साल तक वो सोए रहे। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये चूंकि अल्लाह ताला की निशानियों में से है, तो वन कल्लिबुहुम, दूसरे पारे में ये पढ़ा था। हम उन्हें इक़लाब का मतलब क्या होता है? उल्टा देना। उल्टाना। हम उनको उल्टाते रहते हैं। वनुकल्लिबुहुम, हम उन्हें उल्टाते रहते हैं। हम उल्टाते रहते हैं। हम उन्हें उल्टाते रहते हैं। वही लफ्ज आ गया ज़ात अल यमीनी, दाएं दाएं जानिब तरफ दाईं तरफ जानब, व ज़ात शिमाली, और बाएं जानिब। और बाईं तरफ। और बाएं जानब। करवट दिलाते रहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको एहसास दिया कि भाई जब ये खराब हो गया, कोई चीज होने के करीब हो, तो अल्लाह ताला ने उसको उल्टा दिया। ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो क्या होगा? वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हम हम उन्हें और हम उल्टाते उन्हें रहते दाएं जानिब हैं और बाएं जानिब और बाईं तरफ। उल्टाते रहते हैं। जी आगे क्या है? अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए एक कुत्ता जो है वो रख दिया। ये ज़हन में रखिएगा, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। नए साथियों के लिए कल्ब भी नया लफ्ज है, बासितुन भी नया लफ्ज है, ज़िरा भी नया लफ्ज है, वसीद भी नया लफ्ज है। तो साथियों ने जरा मेहनत करनी है।
क्यों जी, तैयार है? जी जी इंशाल्लाह। कल्ब कहते हैं, एक है काफ के साथ, उसका मतलब होता है दिल। और दिल। अगर उसी को कल्ब कह दें, जो कि हम, तो वो कुत्ता बन जाता है। वह कल्ब हुम, और उनके और कुत्ता। उनका कुत्ता। कुत्ता। जरा अपने जेहन में तसव्वुर करें कि वो सोए हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं, अल्लाह ताला उनको क्या करता है, पलटता रहता है दाएं तरफ भी और बाएं जानब भी। और उनका कुत्ता, बासितुन का लफ्ज है, पहले पढ़ा हुआ है वल्लाहु यबसुतुर रिज़्का। जी, अदा जी, कर दे, कुशादा कर फैलाना, अदा कर जी, दे। ज्यादा कर देता है, फैला देता है, बासित। तो बासित उनका मतलब होगा फैलाए हुए है। जिरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आम तौर पर सुनाता हूँ क्या, कि जो नफल पड़ता है अल्लाह ताला उसका हाथ बन जाता है, जिससे वो उसकी तरफ अगर एक बालिश्त आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ एक जिरा आता है। जिरा, जिरा कहते हैं एक बाजू। बाजू। तो जिरा आई, असल में था जिरा आइन दो। अब ह की वजह से नून कट गया तो बना जिरा आई ही, अपने दोनों दोनों बाजू। बाजू। तो तर्जुमा क्या बनेगा साथी नए जो है, वक़ल्बुहुम, और उनका कुत्ता और उनका कुत्ता बासितुन फैलाए हुए हुए है हैं हुए है जिरा आई ही, अपने अपने दोनों दोनों बाजू। अगले बाजू। अपने दोनों बाजुओं को बिल वसीद। अब इसका मैं तशरीह करूंगा तो मैं आपको ले जाऊंगा वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिन लिल्लज़ी जमा मालन। तो वह है अलैहिम मुअस्सदा, कि वो आग उनके अंदर बंद कर दी गई है। ये वसीद इसलिए कहते हैं, इसका मतलब होता है दहलीज, चौखट, क्योंकि उसके साथ दरवाजा आके बंद होता है। तो वसीद के दो मानी याद रखने हैं। वसीद चौखट को भी कहते हैं, और वसीद वो जगह जो किसी चीज को बंद करती हो, ये भी इसलिए कि वहां जाके इसके मानी एक एक के, एक ही लफ्ज होता है, उसके तीन तीन चार चार मानी हैं। ये दिन में रखिएगा। तो तर्जमा बनेगा, और उनका कुत्ता अपने दोनों बाजू बिल वसीद, दहलीज पर, बासितुन फैलाए, अपने बाजू फैलाए हुए हैं। फैलाए हुए जी, था। अपने ज़ियाउल्लाह मलक साहब तर्जुमा करेंगे, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। और उनका कुत्ता अपने दोनों बाजू दहलीज पर फैलाए हुए है। जी बिल्कुल। तो ये जनाब शक्ल बन गई गार। गार का इसका मतलब है वहां को दरवाजा बना हुआ है और उसकी दहलीज भी है, वहां वो कुत्ता था। ये देर में रखिएगा जी। हमने सारा तर्जमा अब इसमें किया हुआ, प्रेजेंट में हाँ किया जी। है। आगे जी लफ्ज है लवित तलाता। अब ये तो अभी पढ़ा है, तालात। तालात का मतलब है तुलू होना, ऐसा है चमकना। जी। 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 तुलू होना का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे चले जाना। तो यहाँ है लवित तलाता अलई, अगर तू उन पर झांके, ऐसे करके दरवाजे में से अंदर यूं अंदर देखे, उन पर झांके। लवित तलाता अलैहिम का मतलब क्या होगा, अगर तू और उन पर अगर तो झांके। उन पर झांके। अगर तू उन नौजवानों पर झांके। वैसे लवित तलाता तुलू होना, उन पर तुलू हो, तो यहाँ हमारी जुबान का लफ्ज बनेगा अगर तू उन पर झांके, कि भाई अंदर जाके देखा, अपनी आंखें खुली हुई है और हमने देखा तो वो भी है मुर्दा या सोए हुए है, और उनकी आंखें खुली हुई हैं, कुत्ता बाहर बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला कह रहा है ला। ला का मतलब ला, यकीनन। यकीनन। वल्लैता, तू मुंह मोड़ लेगा, तू फिर आएगा। तू तू लौट जाएगा। तू लौट जाएगा, तू फिर आएगा, तू मुंह मोड़ लेगा, दोनों में से एक चीज का जल्दी जल्दी इंतखाब करें।
लवल लौट लेता जाएगा। मुंह मोड़ लेगा, लौट लौट आएगा। जाएगा, ठीक है। मिनहुम, उनसे उनसे पास से उनसे, फिरार, फिरार दौड़कर, भागता ठीक। हुआ, कहते हैं आदमी दुश्मन, फरार हो वो गया। जो कैदी अपनी कैद से फरार हो गया, उसी से ही फिरार और दौड़कर। तो दौड़ तर्जमा कर। होगा, अगर तू उन पर झांके तो तू उनसे दौड़कर दौड़ आएगा। मुंह मोड़ लेगा। अब एक तो मुंह मोड़ा कि वो डर गया, तो अल्लाह ताला उस डरने को भी कह रहा है। हमने पढ़ा हुआ है जी, पहले लफ्ज जो साथी है वो याद रखें कि क़यामत के दिन अगर जमीन भी भरी हुई हुई सोने से, तो ले लो ना। इंसान जहन्नम के अंदर जा रहा होगा, तो वो भरी हुई सोने से जमीन को क्या करेगा? मुंह मोड़ लेगा मुंह उसका। मोड़ लेगा। नहीं, मैंने नहीं कहा, नहीं, अब मिलुल नहीं अर्दा, पहुंचे आप मिलुल अर्दा लफ्ज है जिसकी तरफ आप जी। इशारा मिलुल कर। अर्दा ज़ाहबन लफ्तदत बिही, यह है कि अगर जमीन से भरी हुई, सोने से भरी हुई जमीन भी वो फिदिये के तौर पर दे दे, तो अल्लाह की आमद के दिन जहन्नम की आग से नहीं बचाएगा, इसलिए कि उसका फैसला अटल है। तो मिल उल में आपके जेहन में डाल भरी हुई, तो यहाँ है लमुलिता, तो भर जाएगा। तो यकीनन भर जाएगा, वह भर दिया जाएगा। वह मुलिता का तर्जुमा क्या है? और यकीनन तो जाएगा। भर दिया ये जाएगा जाएगा। यकीनन भर दिया जाएगा। मिनहुम, उनसे उनसे उनसे, रोबा, डर की वजह से, डर की वजह से। रोब, डर के, यकीनन तू उनकी वजह से, उनसे डर के मारे भर जाएगा। अब ये पूरे का पूरा मैं तर्जमा करता हूँ, आखिरी जुमला जिसको दोबारा दोहराएं, दो जुमले मैं कहूंगा। लवित्तला अलैहिम, तर्जमा करें, अगर तू उन पर और अगर झांके, तू उन पर झांके अगर तू उन पर झांके, हाँ, ठीक है। लवल्लैता मिनहुम फिरारा, यहाँ इतना इतना ही करना है जी। तो यकीनन यकीनन उनसे उनसे दौड़कर भागकर मुंह मुंह मोड़ लेगा। देगा। दौड़ कर मुंह मोड़ तू लेगा। उनसे दौड़कर मुंह मोड़ लेगा, ये ज्यादा बेहतर है। वाला मुलीता और मिनहुम यकीनन रुबा, और यकीनन तू यकीनन तो उनकी उनसे तरफ से रोब में भर उनकी जाएगा। तरफ से वो डर रोब की से वजह भर दिया से जाए, डर से भर भर दिया दिया जाए। जाएगा। अब आप तर्जमा भर जाएगा भी तर्जमा करते हैं तो ये एक्सेप्टेड है, भर जाएगा जी। अच्छा जी, ये हो गया, हमने किया। मैं इसका तर्जमा करता हूँ। वतहसबुहुम ऐक़ादन, तूने जागता हुआ ख्याल करेगा। वहम रुकूद, हालांकि वो सोने वाले हैं। वनुकल्लिमुहुम ज़ातल शिमाली, ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हम उन्हें दाएं जानब और बाएं जानब पलटते रहते हैं। नुकल्लिबु, नून है हम उन्हें पढ़ते रहते हैं, पलटते रहते हैं। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद, और उनका कुत्ता बिल वसीद, दहलीज पर अपने दोनों बाजू ज़िराइही बासितुन फैलाए हुए है। लवित्तलाता अलैहिम, अगर तू उन पर झांके, ला, यकीनन, वल्लैता मिनहुम फिरारा, तू उनसे दौड़कर मुंह फेर लेगा। वाला मुलिता मिनहुम रुबा, और तू यकीनन उनसे डर से भर जाएगा। जी कैसर भाई, आपके पास जितना वक्त है मुझे नहीं पता, आप कहाँ पहुंचते हैं, वहां अपना देखें कहाँ से शुरू करना है। जी। वतहसबुहुम ऐकाज़ा, और तू उन्हें जागता हुआ तसव्वुर करता है, करेगा। वहुम रुकूद, हालांकि वो सोने वाले हैं। नुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हम उन्हें पलटते रहते हैं दाएं जानिब और बाएं जानिब। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैही बिल वसीद, और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों अगले बाजू फैलाए हुए है। लवित्तलाअता अलैहिम, अगर तू उन पर झांके, लवल्लैता मिनहुम फिरारा, तो यकीनन तू उनसे दौड़कर मुंह